Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, right advice at right time is the motto of this channel. So, I go on advising you based on the current situation about the employment. And rest is your own choice, which path you have to choose. Sometimes some people misunderstood or misunderstand the things that is discussed by various people on various platforms. So let's understand the real situation, and it is always your call. You are the best judge of your requirements and your capabilities. Now the important question is whether unemployment is good or to be employed is good. First, understand this. If a person is unemployed, what is his or her priority? To get the job. To get the job. And where you will get the job? Where it is offered. Say, I have a dream of becoming IAS officer, but this job is not available. Can I become IAS? Simply by dreaming or making efforts? No. The first thing is offer of job in the sector, in the area where I need the job. This is prerequisite. If say I am very expert in some field, but job is not offered in that field, can I get it? No. So the first and foremost thing is, as an unemployed person, I always look for the job opportunities wherever it is offered. Okay. So to remain unemployed or to remain employed, it is our choice. So if I don't apply for the sectors where jobs are offered merely because it is not as per my liking, it is our choice. Second thing is, say I get a job, I make concerted efforts, I get a job, then who will decide what is to be done? Employee or employer? Obviously, employer will decide what job profile is to be given to the employee. Employee has very little option to exercise. He has only option either to quit if job is not suitable to him or her, or to continue with the job and try to cope up with the job requirement. So this is up to the individual. Nobody can tell you join that sector or you should go for that sector, because every individual will pick the job that is offered to him and that is best for him or her. So if you have more than one option of job, naturally you will pick whatever is suitable to you. But if you are not getting any other option, is it wise to leave the offer wherever it is available? This is a question that you should ponder and give your answer in the comment column. So nobody is there who can recommend you which sector is best. Neither me nor any other person. This is the circumstances that will determine from where you can earn your bread and butter. Whether it is good to remain unemployed or whether to get employment wherever available. I think this is what I wanted to discuss in my previous videos. Some people may understood it properly, some people might have understood improperly. So I have rephrased the questions and the solutions to you. Solution lies with you. Solution lies with the employers. And no third person can help you. If job is offered, then only you will get it. Whatever capabilities you may have, the first thing is availability of job. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. ये चैनल है राइट एडवाइस एट राइट टाइम का, राइट टाइम का. इसमें हमारी कोशिश होती है आपको सही सलाह देना, सही राह दिखाना. और वेरियस चैनल्स पर वेरियस बातें होती हैं, कई बार आप उसको
ठीक ढंग से समझ पाते हैं, कई बार नहीं भी समझ पाते हैं, कई बार आपके विचार डिफरेंट हो सकते हैं, कई बार जो आपको गाइड कर रहा है उसके विचार डिफरेंट हो सकते हैं, और ये ऐसा होता ही रहेगा। मगर आज इस वीडियो में कुछ मूल प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, उस पर आपको सोचना है और फिर आपने विचार करके अपनी मंजिल तय करनी है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या बेरोजगार रहना ठीक है या रोजगार पाना ठीक है? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या मैं वो नौकरी कर सकता हूं जो मुझे ऑफर ही नहीं हो रही? मीन्स सबसे पहली चीज़ ये है कि मान लो मुझे आईएएस बनना पसंद है, मगर आईएएस की वैकेंसी नहीं आती है तो इतनी कम आती है कि मैं उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पा रहा। तो क्या मेरा ये सपना देखना कि मुझे आईएएस बनना मुझे नौकरी दिला देगा? ये आपको सोचना है। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे कुछ सपने होते हैं, मेरे कुछ ड्रीम होते हैं, मैं किसी फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, मगर उस फील्ड में जॉब ऑफर ही नहीं हो रही। अगर जॉब ऑफर नहीं हो रही तो क्या मैं ले सकता हूँ उस जॉब को? इसका आंसर भी आपको खुद ही सोचना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम अनएम्प्लॉयड हैं तो हम किस चीज़ की तलाश करते हैं? हम तलाश करते हैं नौकरी कहाँ कहाँ उपलब्ध है, और जहाँ जहाँ नौकरी उपलब्ध है हम उसके लिए प्रयास करते हैं। प्रयास करने में या तो हमें वो नौकरी मिल जाती है या नहीं मिलती है। मान लो हमें नौकरी मिल जाती है और हम नौकरी पर लग जाते हैं, उसके बाद ये कौन फैसला करेगा कि मुझे क्या काम करना है, एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर? इसको आप जरा सा सोचिए। मान लो एम्प्लॉयर चाहता है कि आपको ये काम करने हैं और वो आपके मन पसंद नहीं है, तो एम्प्लॉय के पास क्या चॉइस है? या तो वो अपने को बदले, जो जो उसको काम कहे जा रहे हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाले और वो नौकरी पे कंटिन्यू रहे। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो उस नौकरी को छोड़ दे और वो नौकरी की तलाश करे जहां उसका दिल खुश है। अब वैसी कोई नौकरी है या नहीं है ये परिस्थितियां बताएंगी, या जब आप उसकी तलाश करेंगे आपको पता लगेगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि ये नौकरी अच्छी है या ये नौकरी बुरी है, या मुझे ये नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपके सामने क्या ऑफर है और उस ऑफर को आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। इसमें तीसरा व्यक्ति कोई आपको कोई राय नहीं दे सकता। मान लीजिए मैं भूखा हूं, तो मुझे क्या खाना है ये कौन डिसाइड करेगा? मैं। अब मान लो मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये चीज़ें खानी है, मगर उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ, तो क्या मैं उसको खा पाऊँगा? मैं वही खा पाऊँगा जिसको मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, और अफोर्डेबिलिटी हर व्यक्ति की सेम नहीं होगी। इसी प्रकार जब हम जॉब मार्केट में जाते हैं तो तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें हमें बताएंगे। वो उनका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो उनका अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। क्या वो आपको सूट करता है, ये आपको देखना है। कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं बता सकता कि आपके लिए क्या अच्छा है। आपके लिए क्या अच्छा है ये आपको ही चुनाव करना है। पर अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, क्या मेरे पास चॉइस है कि सिर्फ मैं वही नौकरी करूँ जो मेरी मनपसंद है? ये मूल प्रश्न है, इसके ऊपर आप गहराई से विचार करें। बहुत लोग मैंने देखा है लंबी लंबी डिस्कशन करते हैं, ये नौकरी अच्छी है, वो नौकरी अच्छी है, ये करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अपने अपने विचार देना, पर यथास्थिति क्या है? क्या हर नौकरी मेरे मांगने पर मुझे मिल रही है? क्या मैं आज की परिस्थितियों में अपनी मनपसंद नौकरी का चुनाव कर सकता हूँ? ये मुझे सोचना है। अगर कर सकता हूँ तो नेचुरल है, मैं वही करूँगा। मैं क्यों ऐसी नौकरी करूँगा जो मुझे पसंद नहीं है? और किसी को कोई नौकरी अच्छी लग सकती है, किसी को कोई लग सकती है, इसमें भी वेरिएशन है। सभी लोगों को एक जैसा ही काम अच्छा लगेगा ये तो संभव ही नहीं है। पर क्या काम करना होगा
ये कभी भी एम्प्लॉय नहीं डिसाइड कर पाएगा। क्या काम करना होगा ये हमेशा एम्प्लॉयर डिसाइड करना होगा। और जैसे ही हम इस बात की सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेंगे, हम सुखी होना सीख लेंगे। अन्यथा हमारे चारों तरफ दुख ही दुख रहेगा। ये हमें सोचना है कि स्थितियाँ क्या हैं, उन स्थितियों में कौन सी स्थिति मेरे अनुरूप है और मुझे सूट करनी है। एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है इस जीवन में। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ये हर व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच है। पर आपको किस क्षेत्र में जाना है ये आपका अपना फैसला है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपकी मदद करता है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, सिर्फ इतना ही हमारा रोल है। आपको बैंकिंग में आना है नहीं आना है ये आपका अपना निर्णय है, और उस निर्णय के अनुसार ही आप आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल।